فریب چشم، رائٹر ہیں امیمہ خان، سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 15 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ فون کی مسلسل گونجتی آواز پر وہ چاروں ناچار کمرے کی طرف گئی جہاں فون بری طرح بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ دیکھتی ایک بار پھر فون بج اٹھا۔ بیگم کی کال دیکھ کر وہ دانتوں تلے لب دبا گئی۔ یقیناً پچھلے 15 منٹ سے وہ اس کو کال پر کال کر رہا تھا۔ میں نیچے گاڑی میں ہوں، جلدی سے پہنچو۔ چھوٹتے ہی حکم دے کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ میرال جلدی سے بالکنی سے نیچے جھانکنے کے لیے باہر کی طرف بڑھی جہاں واقعی گاڑی کھڑی تھی۔ سوچنے میں وقت ضائع کیے بغیر وہ بیڈ پر پڑا فون اٹھا کر نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ اماں، سیغم بلا رہے ہیں، آپ مصطفیٰ کو دیکھ لیجیے گا، فوزیہ بیگم کے کمرے میں جھانکتے ہڑبڑی میں کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بالکنی سے جھانک کر تسلی کرنی ضروری تھی مسز۔ اس کی حرکت پر چوٹ کرتے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے کب دیکھا؟ جھوٹ بول کر دامن بچانا چاہا، لیکن اس کی ایک ہی گھوری میرال کو لائن پر لے آئی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ خجالت مٹانے کی خاطر موضوع بدلنا چاہا تھا۔ ڈنر پر، آرام سے جواب آیا۔ وہ جو میں نے ڈھیروں کھانا بنایا ہے وہ کون کھائے گا؟ صرف ہم جانتا تھا کہ وہ مسکرا ہرگز نہیں رہی بلکہ اس پر طنز کر رہی ہے۔ عجیب ہے جی، لڑکیاں تو ایسے رومانٹک ڈنر پر خوش ہوتی ہیں۔ حیرت کا بھرپور اظہار کیا تھا۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ میں ایک ان رومانٹک بنتی ہوں۔ اس کی طرف جھکتے رازداری سے کہا تھا، گویا کسی اور سے بات کر رہی ہو۔ تمہارا شوہر بکواس کرتا ہے، اس کے ادا خاصی بھائی تھے، اس لیے اس کا انداز اپنا تھے، کہا تھا۔ ایسا نہ بولے میرے شوہر کے بارے میں، سمجھے؟ برا مناتے کہا تھا، جبکہ نہ جانے کہ اس وقت بیگم کو خود سے ہی جلن محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا ہمیں ہنی مون پر جانا چاہیے؟ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت نیند میں ہیں؟ تھوڑی تلے ہاتھ ٹکاتے آنکھیں پٹ پٹائی۔ اور جناب کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ نظریں سڑک سے ہٹا کر اس کی جانب کی۔ کیونکہ شادی میرا اور عالیحان کی ہوئی ہے، ہماری نہیں، اس لیے انہیں جانا چاہیے، ہمیں نہیں۔ اس کی بات پر بیگم نے ناک پر سے مکھی اڑائی، جیسے یہ وجہ بالکل بھی پسند نہ آئی ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کندھے اچکا کر نارمل انداز میں پوچھا تھا۔ فی الحال جس اسپیڈ سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ہم ریسٹورنٹ پہنچ جائیں، بڑی بات ہے، ہنی مون تو دور کی بات ہے۔ گاڑی کی ہلکی اسپیڈ پر طنز کرتے کھڑکی سے باہر نگاہیں مرکوز کی، جبکہ اگلے لمحے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ وہ گاڑی کو جہاز کی اسپیڈ پر چلا رہا تھا۔ بیگم آہستہ یا، جبکہ وہ ہنستے ہوئے رفتار آہستہ کر گیا۔ اسے ہلکی اور تیز گاڑی نہیں چلا سکتا میں۔ میرال نے توبہ کی تھی اسے کچھ بھی کہنے سے۔ اس شخص پر ہر بات کا الٹا ہی اثر ہوتا تھا۔ بڑی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے آپ، آنکھیں گھماتے کہا تھا، جبکہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئے۔ پھر تو تمہیں مجھ سے ڈر کر رہنا چاہیے، دل فریب لہجے میں کہتے اس کی جانب ہلکا سا جھکا تھا۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں۔ اس کے بازو پر ہلکی سی چپٹ رسید کرتے باور کروایا۔ اوکے باس۔ اس کی ناک دباتے وہ گاڑی کی رفتار تیز کر گیا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی۔ زندگی کا ہر پل پچھلے پل سے زیادہ حسین تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بیگم کو اس کا سر اپنے کندھے پر محسوس ہوا تھا۔ وہ نہ محسوس انداز میں اپنے بازو اس کے گرد باندھ گیا۔ جھلملاتی روشنیوں میں گاڑی مخصوص رفتار سے چلتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر جائزہ لیتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا، کانوں کے پاس جھک کر سرگوشی نما انداز میں پوچھتے، اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائی۔ کمرہ کافی بڑا نہیں ہے؟ وہ اس کی طرف مڑتے بولی تھی، جبکہ عالیحان نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر کمرے پر ڈالی۔ ایک کام کرتے ہیں، آدھا کمرہ کرائے پر دیتے ہیں کسی کو، ہم دونوں کے لیے تو بیڈ جتنی جگہ کافی ہے۔ سنجیدگی سے بھرپور طنز کیا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی پرے دھکیل گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے پھر سے کچھ سوچنے لگی۔ آج راستہ چھٹی پر ہے؟ اس کی دکھ سے بھرپور آواز پر وہ ایڑیوں کے بل مڑی، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ اور میرا بریانی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ اور راشتہ کے ہاتھ کی بریانی، واللہ کیا بتاؤں تمہیں، بالکل۔ وہ ایک جذب کے عالم میں ابھی بول رہا تھا کہ پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ عالیحان ہوش میں آتا اس کے پیچھے بھاگا، جو تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سنو تو مرحا، رکو، اس کے پیچھے بھاگتے آواز لگائی، جبکہ مرحا کا رخ کچن کی جانب تھا۔ الماری اور فریج سے کچھ مختلف چیزیں نکال کر اس شیلف پر پلٹنے لگی۔ بی بی سائیں، ہم نکال دیتے ہیں۔ نہیں، تم سب جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں کوئی نہ آئے۔ ملازموں کو کچن سے نکالا، جبکہ عالیحان نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا، جو فریج سے گوشت نکال کر باہر رکھ رہی تھی۔ شیلف پر پڑا سامان دیکھتے لب ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اوہ، یعنی اب میری بیوی رات کے اس وقت میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے بریانی بنائے گی؟ کمال ہو گیا۔ خوشی سے تمتماتا چہرہ لیے وہ کرسی گھسیٹتا وہیں بیٹھ گیا، اور اس کی حرکت کو لاحظہ کرنے لگا، جو خاموشی سے لب پیچھے سامان ڈھونڈ رہی تھی۔ ویسے شوہر کی خدمت کرنے والی بیویاں جنت میں جاتی ہیں۔ سامنے پڑے جار سے میوہ جات نکال کر منہ میں ڈالے تھے۔ عالیحان مسکرا کر اسے پکارا، جبکہ اس قدر محبت پر اخروٹ گلے میں ہی پھنس گیا۔ جی جان عالیحان، جواباً جس قدر
जवाब जिस कदर मोहब्बत से किया गया वो पल भर के लिए सटपटाई, मगर फिर प्याज और छुरी लाकर इसके सामने रखा। साथ ही कटिंग बोर्ड भी मेज पर रखा। आलिया ना समझी से चीजें देखने लगा। मुझे क्यों दे रही हो? जार बंद करते हुए पूछा। ताकि तुम काट सको, आराम से जवाब देते हुए वापस पलट गई। व्हाट? मेरा ये मैं काटूं? मुझे तो छुरी पकड़नी भी नहीं आती। सामने पड़े प्याजों को अजीबोगरीब निगाहों से देखते चेहरे के साब ही बिगड़े। फिर बिरयानी नहीं बन सकती। हाथ झाड़ते इसके सामने वाली कुर्सी पर आ बैठी थी। क्यों? बिरयानी खाने की सारी खुशी अड़ंचू होती दिखाई देती, क्योंकि मुझसे प्याज नहीं कटते। बेबसी से कहते थोड़ी मेज पर टिकाई, जबकि इसकी इस तकलीद करते वो थोड़ी मेज पर टिका गया। दोनों दरमियान में पड़े प्याजों को देख रहे थे। मतलब मैं इनकार समझू? प्याजों को खूंखार निगाहों से घूरते पूछा, जैसे सारा कसूर इन प्याजों का हो। नहीं, अगर तुम काट दो तो मैं बना सकती हूँ। उंगली से मेज बजाया था। रात के इस वक्त वो दोनों सामान बिखेरे मेज पर आमने सामने बैठे थे। मान लो कि राशा तुमसे ज्यादा अच्छी है। इसकी बात पर मिर्हा ने झटके से सर उठाया। एक खूंखार घूर इस पर डालते प्याज वाली प्लेट अपनी तरफ खींची। प्याज जैसे तैसे छिल गए, जबकि इसके तासुरात देखते आलिया ने बामुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। असल मसला तो तब पेश आया जब काटने की बारी आई। बमुश्किल आधा प्याज कटा होगा कि वो कुर्सी धकेल कर उठ गए। बस राजदा बहुत अच्छी, मुझसे नहीं होता ये। आलियान का जोरदार कह कहा गूंजा था। फाखरा इसे समेटो और 2 कप कॉफी कमरे में भेजो। मुलाजमा को आवाज देता वो उसकी तरफ बढ़ा, जो सिंक पर रुकी आंखों पर पानी के छींटे मार रही थी। हो गया? इसकी तरफ टिश्यू बढ़ाते आंखें देखी जो सुर्ख हो रही थी। बेसाख्ता अपने मजाक पर अफसोस हुआ। सॉरी यार, मजाक कर रहा था। इसका चेहरा साफ करते माजरत की थी। मैं तो सब लड़कियों की हिम्मत को दाद दूंगा, सवाए तुम्हारे जो कितने मुश्किल काम करती है। इसकी बात पर मिरहा ने एक जोरदार मुक्का बाजू पर मारा था। तुम्हारी गलती है, अगर तुम प्याज काट देते तो मैं बना देती। मतलब मिरहा स्ट्रॉन्ग लेडी प्याज नहीं काट सकती, इसको छेड़ने के गर्ज से कहा था। जबकि वो सीढ़ियां चढ़ते हुए रुककर उसे देखने लगी। अब तुम मुझे तंग कर रहे हो, खफगी से कहा था। मेरी इतनी मजाक? सर दाएं बाएं हिलाते इसके गिर्द बाजू फैलाए। वो एक नजर इसको देखती आसूदगी से मुस्कुरा दी। चंद सालों बाद देखिए रफीक साहब, जमानत तो कर देंगे, लेकिन खर्चा पानी भी तो चाहिए होता है ना। हमारे घर तो आपके नजरे करम की वजह से चल रहे हैं। टोपी उतारकर मेज पर रखते मखसूस अंदाज में कहा था। कितने? मकाबल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अरे जो मर्जी दे दे, अपनी खुशी खुशी से, शान बेनियाजी से कहते मेज पर पड़ा पेपर वेट घुमाने लगा था। जबकि इससे जरा से फासले पर खड़ा कांस्टेबल हैरत से अपने सर को देख रहा था, जो आते ही रिश्वत शुरू कर चुके थे। बेशक पिछले अफसरान भी इस किस्म के थे, मगर इस अफसर के खानदान के बारे में जानने के बाद एक अच्छा तासुर कायम हो चुका था। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुंह में बड़बड़ाता वो वापस सामने होने वाली कार्रवाई पर ध्यान देने लगा। 50 लाख पहली ऑफर आई थी। एसपी मुस्तफा के चेहरे के तासुरात बिगड़े। 70 लाख? वो जानता था ये लोग 1 करोड़ पर भी मान जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा कमीनगी का मुजाहिरा वो कर नहीं सकता था। आखिर इसके अपने भी चंद असूल थे। ये ले, गिन ले। नीले नोटों की कई गड्डियां इनके सामने खड़े मुलाजिम ने मेज पर रखी थी, जबकि वो तो हैरत से इनकी कार्रवाई देखने लगा। शायद वो जानते थे कि पैसे के जोर पर मुंह बंद करवाने में कामयाब हो जाएंगे। एक ताज्जुब भरी निगाह नोटों पर डालते बेसाख्ता शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन फिर जी कड़ा कर गया। समीउल्लाह, पैसे गिनो। कांस्टेबल सैल्यूट करता आगे बढ़ा और गड्डियां गिनने लगा। पूरे हैं सर। मुस्तफा सर हिलाता फाइल खोलने लगा। चलो, माफीनामा साइन कर। वो सीधा कपड़ों में मलबूस वो ज़ईफुल अमर शख्स शक्ल से ही मजबूरी की दास्तान लग रहा था। साहब साइन नहीं आते, लाचारी से कंधे ढीले छोड़े थे। मुस्तफा नखुवत भरी निगाह पर डालता स्याही की डब्बी इसके सामने धकेल गया। मुस्तफा हैरत में डूबी आवाज पर इसने सर उठाया। जहां खड़ी हस्ती और उसके तासुरात देखते अंदाजा हुआ कि वो सब सुन चुकी है। एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करता हुआ इस पर से नजरें हटा गया। जल्दी करो। अगले 2 मिनट में माफीनामा साइन हो चुका था। वो आगे बढ़कर इस अमीर शख्स के गले लगकर गोया कानून की धिच्चियां बिखेरने पर मुबारकबाद दे रहा था। चलो भाई, ये थाना है, तुम्हारा घर नहीं जो डेरा डालकर बैठ गए हो। इस ज़ईफुल अमर शख्स को हिकारत से कहते डपटा और खुद सर पर टोपी रखता जेब में गन चेक करता बाहर निकल आया। अलाय भी इसके पीछे लपकी। वो जानता था कि अब एसपी मुस्तफा से गम कमाल की तफ्तीश शुरू हो जाएगी। इससे पहले वो इस पर धावा बोलती। अपना दामन बचाने की गर्ज से वो खुद ही बोल उठा था। शरीफ लड़कियां यूं मुंह उठाकर थाने नहीं आती। इसको एक नजर देखते लफ्ज शरीफ पर खासा जोर दिया था। वो जो कुछ बोलने के लिए लब खोलने वाली थी, सारे अल्फाज मुंह में ही रह गए। इसकी बात पर एक इस्तेहजाई मुस्कान उछाली। ओ, इस हिसाब से जो लेडी पुलिस ऑफिसर है ये तो बदमाश हुई। क्यों, सही कहा ना मैंने? इसकी तरफ एक कदम बढ़ाते गहरा तंज किया था, जबकि वो लब भींच कर इसकी हाजिर जवाबी मुलाहिजा करने लगा। इस लड़की से जीतना नामुमकिन था, उधार रखना तो शायद सीखा ही नहीं था इसने। माफ करो बाजी। जान छुड़ाने के लिए बोलता वो जरा तेज चलने लगा, ताकि इसके सवाल जवाब से जान छुड़ा सके, लेकिन बदकिस्मती से यही बात गले पड़ गई।
ओए अबे ओए बाजी किसको बोला? वो एक जस्ट में इस तक पहुंची थी, भूरे बाल पोनी से निकलकर चेहरे पर झूलते उसे पुरकशिश बना रहे थे। तमीज से तो वैसे ही वो उसे कम कम मुखातिब करती थी, लेकिन लफ्ज बाजी पर तुम से अबे ओए का सफर इसने 1 मिनट से भी कम वक्त में तय किया था। बाजी को बाजी ही बोलूंगा ना। बाजी मसनूई मासूमियत से कहकर वो फिर से चलने लगा। जितना जान छुड़ाने की कोशिश में था ये लड़की, इतना ही इसके गले पड़ती जा रही थी। बाजी के कुछ लगते, अब अगर मुझे बाजी बोला तो तुम्हारा बाजा बजा दूंगी। गुस्से और गर्मी की शिद्दत से चेहरा सुर्ख पड़ा था। छोटी सी नाक फुलाए वो उसके आगे डट कर खड़ी थी। अंदाज सख्त था, जैसे लफ्ज बाजी कतई पसंद न आया हो। इस लम्हे वो बात तो शायद भूल ही गई थी जो कहनी थी। ओके बाजी। बायां दबाता वो जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ा था, जबकि वो हक्का बक्का सी खड़ी इसकी पुश्त को खूनख्वार नजरों से घूरने लगी। भीचे लब और बंद मुट्ठियां गुस्सा दबाने की अक्कासी कर रही थी, जबकि फिर कुछ सोचते लब मुस्कुराहट में ढले। चाचा घर जाएं आप, मॉम को कह देना मैं मुस्तफा के साथ आ रही हूँ। बावर्दी मुलाजिम इस बात में सर हिलाता वापस मुड़ गया। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ? काम है मुझे, तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ मैं। गाड़ी का दरवाजा बंद करते गुस्सीली निगाह दूर जाती गाड़ियों पर डाली, दूसरे सामने खड़ी अलाया पर। अरे हाँ, डीएसपी साहब, आपने तो रिश्वत के पैसों से याशी करनी होगी, मुझे कैसे साथ लेकर जा सकते हैं? शहादत की उंगली थोड़ी तले रखने पर रखते पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। फजूल मत बोला करो। नजरें फिरते गाड़ी का रुख किया, जबकि वो इससे पहले ही जाकर फ्रंट सीट पर परजमान हो चुकी थी। तुम्हें कौन सी जबान में समझाऊं कि घर नहीं जा रहा मैं, आज काम है मुझे। उसे अपने साथ बैठा देखकर गुस्सा दबाते कहा, मुझे घर छोड़कर तुम जो भी करो, और ये जो तुमने हरकत की थी ना, थाने में शर्म से डूब मरने का मकाम है। 80 लाख के लिए अपना ईमान बेच डाला। इस बूढ़े आदमी पर तरस ना आया तुम्हें? मुझे बताते डैड से लेकर 80 लाख क्या 1 करोड़ तुम्हारे मुंह पर मारते। आखिरी जुमला नखुवत से कहा था। वो जो लब भीजे उसे सुन रहा था, आखिरी बात पर घूर कर रह गया। हो गया यूं जैसे एक भी लफ्ज से फर्क ना पड़ा हो। अलाया ताज्जुब से सर हिलाती सीधी होकर बैठ गई। कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ। अगर मैंने बहती गंगा में हाथ धो लिए तो क्या हुआ? कंधे उचकाते नॉर्मल अंदाज में कहा था, जैसे 80 लाख एक मामूली रकम हो। जबकि अपनी बात मुकम्मल करता वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। रिश्वत हराम है। रिश्वत रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। ताज्जुब से उसे समझाने की कोशिश की थी, जो यकीनन नाकाम होने वाली थी। जन्नत जहन्नुम का हम फैसला करने बैठे तो हर शख्स जहन्नुम ही लगेगा। नाक पर से मक्खी उड़ाते किसी को मैसेज किया, मामू के पास इतना पैसा है, तुम्हारी खुद की तनख्वाह काफी है, तो फिर क्या जरूरत है हराम माल खाने की। लब भीजे उसे देखा जो कहीं गाड़ी रोक उतर कर इसकी तरफ आ रहा। उतरो, दरवाजा खोलते कहा, जबकि निगाहें सड़क पर भटक रही थी। पागल हो तुम, कैसे जाऊंगी मैं घर? नीचे उतरते वो चीखी जब निगाह सामने खड़ी अपनी गाड़ी पर पड़ी। उसे पीछे धकेलते वो अपना बैग कंधे पर डालती गाड़ी की तरफ बढ़ गए। काली वर्दी पहनकर काले करतूत छुपते नहीं है। डीएसपी मुस्तफा सेगम कमाल। अब देखना तुम कैसे बदला लेती हो तुमसे। जाते जाते झटके से रुककर वार्निंग दी। इसकी पुलिस वर्दी पर भी तंज कर डाला। मुस्तफा ने मुतासिर कुन अंदाज में उसे देखा, जो नडर लहजे में इसके सामने खड़ी धमकी दे रही थी। मैं तो डर गया आप ही। हाथ उठाकर सीज फायर किया था। डरने की नाकाम एक्टिंग करते वो उसे सरता पैर सुलगा गया। लफ्जापी पर वो पैर पटकते अपनी गाड़ी की जाने पड़ गई, जबकि मुस्तफा भी सर झटकता अपनी गाड़ी में जा बैठा। अलाय को रास्ते में उतार कर वो वापस गाड़ी मोड़ गया। थोड़ी देर पहले वाले तासुरात गायब थे, अब चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ संजीदगी थी। दांत पर दांत जमाए वो तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ा रहा था। चंद किलोमीटर के फासले पर गाड़ियों का रेला देखकर वो किसी गाड़ी की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि एक लैंड क्रोज के पीछे यूनियन कौंसिल के सरबराह का मोनोग्राम बना था। गाड़ी को तेजी से चलाते ओवरटेक करके रोका, जिसके बायस प्रोटोकॉल का हिस्सा पिछली गाड़ियों को भी रोकना पड़ा। क्या मसला है तेरे साथ? गाड़ी क्यों रोकी? यूनियन कौंसिल के सरबराह का बेटा अरसलान गाड़ी रुकने पर शदीद बदमजा होता ड्राइवर पर चढ़ दौड़ा। साईं, वो पुलिस की गाड़ी है। ड्राइवर जल्दी से बोला। मुबादा पराया गुस्सा इसी पर न निकल जाए। अरसलान गाड़ी से उतरा, मगर इससे पहले ही एसपी मुस्तफा शेख कमाल इसके सामने तनकर खड़ा था। अरसलान मिर्जा बमुश्किल खड़ा था। अगर मुस्तफा जरा सा भी आगे होता तो ये वापस सीट पर जा गिरता। फोन देना। अपना चश्मा उतारते स्पॉट लहजे में हुक्म जारी किया। मकाबिल के चेहरे से पल भर में तमाम रंग उड़े। हलक तर करते हुए इधर उधर देखा, जहाँ एक मखसूस फासले पर इसके बारूदी गार्ड्स बंदूकें पकड़े बावर्दी गार्ड्स बंदूकें पकड़े खड़े थे। लेकिन वो जानता था कि ये गार्ड्स कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सामने इनका बाप था। क्या मतलब है तुम्हारा? न चाहते हुए भी जबान लड़खड़ा गई। वजह मकाबिल के सर तासुरात और सुर्ख आंखें जो भस्म करने की सलाहियत रखती थी। मुस्तफा एक स्पॉट निगाह पर डालता आगे बढ़कर इसके कोट की जेब से मोबाइल निकाल के इसकी जुर्रत पर अरसलान दंग रह गया। लेकिन इतनी हिम्मत न थी कि उसे रोक सकता। बाप के पैसे पे सिर्फ रोक जमाना आता था। ये बहादुरी, गैरत, अना, दहशत क्या होती?
अरसलान मिर्जा को भला क्या पता। वापस करो मेरा फोन, होश में आता वो चीखा। मुस्तफ़ा के लब एक साइड से मुस्कुराहट में ढले। अपना काम मुकम्मल करके फोन वापस उसकी जेब में रखा और उसके कोट के कॉलर से नादीदा गिर्द छाड़ने लगा। अरसलान मिर्जा हलक तर करता वहीं खड़ा रहा। सामने पुलिस की वर्दी में वो वजीह शख्स संजीदा तासुरात में इतना बारोब लग रहा था कि बोलने से पहले जबान लड़खड़ा जाती। बच्चा तो मैं अपने बचपन में भी नहीं था। ये अलग बात है मेरे माँ बाप को समझने में थोड़ी देर लग गई, वरना मैं अब तक आईजी सिंध होता, एसपी की पोस्ट पर ना पड़ा होता। बाजू उसके कंधे पर रखते दोस्ताना लहजे में कहा, जैसे न जाने कितनी अच्छी दोस्ती हो। अरसलान चाह कर भी इसका बाजू न हटा पाया। हाँ तो मैं बता रहा था बेटा, बच्चों वाले खेल मेरे साथ ना खेला करो। तुम्हें लगा कि तुम मुस्तफ़ा के साथ डबल गेम खेलोगे और मुस्तफ़ा को पता नहीं चलेगा। बड़ा अफसोस हुआ। ये वीडियो उड़ा दी है मैंने। तुम्हारी बेवकूफ़ी है, मेरी खुशकिस्मती कि तुमने अभी तक किसी को भेजी नहीं है, इसलिए अब तुम्हारी मेहनत ज़ाया गई। आइंदा मेरे साथ होशियारी मत करना। अगली दफ़ा इतने प्यार से नहीं समझाऊंगा, समझे? बात मुकम्मल करते इसके कोट को झटका दिया। वो कॉलर पर झटका लगने से अरसलान जरा सा इसकी तरफ झुका। चलो अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी थाने में, क्योंकि तुम्हारे जो करतूत है मुझे लगता है तुम्हारा बिस्तर थाने में ही लगा दूँ। क्या रोज रोज आना जाना, इस्तहजाइया लहजे में कहते वो वहां से पलट गया। अरसलान मिर्जा कई लम्हे वहीं साकित खड़ा रहा, जैसे इस अचानक आपदात पर समझ न आया हो कि इसके साथ क्या हुआ है। मुस्तफ़ा जानता था कि वो सारे वाक़े की महफूज अंदाज में रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन वो जानते बूझते खामोश रहा। इसीलिए अलाय को जल्दी से वहां से भेजते उसका पीछा करता यहाँ तक आया। डैशबोर्ड में पड़ी नीले नोटों की गड्डियां देखकर अलाय की बात याद आई तो सर झटक गया। इसका रुख अब घर की जानिब था। पूरे 2 महीने बाद घर जाने का सोचकर होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। साथ ही गैर महसूस अंदाज में गाड़ी की रफ्तार जरा सी तेज कर दी। ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली का मंजर था, जहां वफाकी वजीर आलियान अफंदी की जानिब से रेप के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए करारदाद पेश की गई थी। और खुशकिस्मती की बात थी कि करारदाद को भारी अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया था। वो खुश था क्योंकि ये एक अहम पेशखेमा साबित हो सकता था ज्यादती की रोकथाम के लिए, बशर्ते अगर इस पर ईमानदारी से काम किया जाता। ज़हे नसीब, मुझे लगता है जनाब को खबर मिल गई। फ़ोन पर जगमगाता नंबर देखकर बिना ताखिर के कान को लगाए। इजलास अभी ख़त्म हुआ था और वो घर जाने को था। जी बिल्कुल, वैसे इस नई कामयाबी पर मुबारक हो। आलियान बेसाख्ता मुस्कुराया, बालों में हाथ फेरते बाहर कर रुक गया। पिछले चंद सालों से हर मौके पर सबसे पहली मुबारकबाद मेरा आलियान अफंदी की जानिब से वसूल होती थी। बज़ाहिर इससे लापरवाह रहने वाली ये लड़की इसके बारे में हर मालूमात रखती थी। शुक्रिया। वैसे यार, एक और करारदाद पर कल ईवान में बहस होनी है। चश्मा आंखों पर चढ़ाते वो गाड़ी में जा बैठा। साथ ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कौन सी? खिड़की के पर्दे बराबर करती वो सोफे पर जा बैठी। सामने ही टीवी पर कौमी असम्बली का मंजर चल रहा था और एंकर आज मंसूर कई गई करारदाद के निकात बता रहे थे। टीवी म्यूट करती वो पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जा थी। दूसरी शादी के लिए काफी लंबा चौड़ा शरायतनामा रख रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसकी मुखालफत में दिलम करारदाद लाऊं। सीट से टेक लगाते उसे तंग करना चाहा था, लेकिन वो भी इसी की बीवी थी। जानती थी कि अगर कोई उल्टी सीधी बात की तो कई महीनों तक आलियान को उसे तंग करने का मौका और मौसम मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है। 4 शादियों की तो इस्लाम में भी इजाज़त है, इसलिए सिर्फ बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। मैं खुद बाकी शराइत के खिलाफ हूँ। मुस्कुराहट दबाते इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आलियान भी इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तुम तो देती नहीं हो इजाज़त, लहजे में दुनिया और जहान का दुख समाया था। मेरी तरफ से इजाज़त है, बेशक जितनी मर्जी कर ले, बस आपकी टांगों और हड्डियों की जमानत नहीं दे सकती। एक बेसाख्ता कहका पूरी गाड़ी में गूंजा। ड्राइवर ने बमुश्किल गाड़ी संभाली। वो राजू थोड़ी था जो ऐसे झटकों पर खुद को संभाल लेता। आलिया ने ड्राइवर की हरकत पर शीशे से घूरा। मैं बंद कर रही हूँ फोन, इसके कहके पर शर्मिंदा होते बोली। अच्छा सुनो, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। एयरपोर्ट के सामने गाड़ी रुकी थी। वो जल्दी से उतर कर अंदर की जानिब बढ़ा। एक हाथ में फोन पकड़े, दूसरे हाथ में छतरी थी। साथ चलता इसका पिए छतरी पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो हाथ से इशारा करता खुद ही छतरी पकड़े खड़ा रहा। खुशगवार मौसम में हल्की हल्की बूंदाबांदी इसका मूड मजीद खुशगवार कर गई। क्यों? दूसरी तरफ से बेसाख्ता सवाल आया। काम है स्वीटहार्ट। स्वीटहार्ट जरा आहिस्ता बोला था, क्योंकि इर्द गिर्द इसके गार्ड्स, पीए और फौजी अफसरान मौजूद थे। बिरहा समझते हल्का सा मुस्कुरा दी। स्वीटहार्ट जरा ऊंचा बोलो ना, सुनाई नहीं दिया। सोफे की बुर्ज से टेक लगाया उसे छेड़ा। बोल दो। बिरहा फौरन सीधी हुई, जानती थी कि वो बोल देगा। मुतवक्का शर्मिंदगी का सोचते लब काटे। खुदा हाफिज, भी अमान अल्लाह, जल्दी से कहते फोन बंद कर दे। आलियन सरशार सा फोन को देखने लगा, जहाँ इसकी तस्वीर लगी थी। ढलती उम्र ने उसे मजीद ग्रेसफुल बना दिया था, जबकि इसके खुद के बारे में जानने के लिए लोगों की निगाहें ही काफी थी, जो एयरपोर्ट पर से यूं मुस्कुराता देखकर इसके साथ चिपक गई थी।
लोग इसकी तरफ आने की कोशिशों में थे। मीडिया भी इससे करारदाद के बारे में बात करना चाहता था, मगर गार्ड ने सारी कोशिशें नाकाम बना दी। लोगों की सताइशी निगाहें खुद पर देखकर मुस्तफ़ा का शिकवा याद आया। मामू यार, आपके साथ होता हूँ तो लोग मुझे घास भी नहीं डालते। हालांकि मैं जवान जहान हूँ, हैंडसम हूँ, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या मसला है, जवानों को छोड़कर बूढ़ों के पीछे लग गए हैं। इसका मसनूई खफकी भरा चेहरा होंठों पर मुस्कान बिखेर गया। एयरपोर्ट के बाहर खड़ा वो फोन पर चंद मैसेज करने लगा। सर, फ्लाइट का टाइम हो गया है। पीए की आवाज़ पर वो सर हिलाता इसके पीछे चल दिया। अंदर दाखिल होकर छतरी बंद करके साथ मौजूद लोगों में से एक को पकड़ाई। अगले चंद मिनटों में पीआईए का जहाज कराची एयरपोर्ट की जानिब परवाज कर चुका था। गाड़ी मुस्तफ़ा हाउस के सामने रुकी थी। गार्ड्स ने अंदर बैठते वजूद को देखते जल्दी से गेट खोला। पोर्टिको में गाड़ी रुकी तो अलाया अपना बैग कंधे पर डालती बाहर निकली। सामने ही पुलिस की गाड़ी देखकर ठटकी। झूठा गधा बंदर, मुझे कह रहा था कि घर नहीं जाना, काम है मुझे, और खुद मुझसे भी पहले पहुंच गया। गुस्से से इसकी गाड़ी को ठोकर मारते अंदर की तरफ बढ़ी। सब कहाँ है? घर में सकूत महसूस करते एक मुलाजमा को रोक कर पूछा। वो डाइनिंग हॉल का कहती आगे बढ़ गई। अलाया तेज तेज कदम उठाती डाइनिंग रूम की जानिब बढ़ गई। हेलो अलाया। मिनहा इस पर नजर पड़ते ही जल्दी से बोली। बाकी नफूस भी चौंके। चलो, यहाँ भी आ गई है। अल्लाह, अब आप ही मुझे इससे बचा सकते हैं। मुस्तफ़ा खाने का निवाला छोड़कर बड़बड़ाया। कैसी हो अलाया? आओ डिनर करो। सीगम इसके लिए कुर्सी घसीटता जल्दी से बोला। मुस्तफ़ा इसकी इस कदर खातिरदारी पर किलस कर रह गया। वो यहाँ होते हुए भी पिछले कई सालों से यही थी। पहले उसे लगता था कि शायद इसके माँ बाप के पास बेटी नहीं है, तभी उसे इतनी अहमियत देते हैं। मगर ये ख्याल मिनहा के बाद गलत साबित हुआ, क्योंकि मिनहा के बाद भी अलाया की अहमियत में कमी नहीं हुई थी। वाह जी वाह, खाना पीना चल रहा है। पर ये क्या मुमानी, सिर्फ वन डिश। खाने के बर्तन देखते मुंह बनाया। जहाँ कीमा और खीर मौजूद थी, मुस्तफ़ा उसे घूर कर रह गया। वो इसलिए क्योंकि ना मुस्तफ़ा बताकर आया ना तुम, और हम बाहर डिनर करने वाले थे। मिरालिस की प्लेट में कीमा निकालती रसानियत से बोली। मैं तो ये सोच कर आई थी कि यहाँ शाही पकवान पके होंगे। आखिरकार इसी पे मुस्तफ़ा साहब ने आज इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। क्यों मुस्तफ़ा? निवाला मुंह में रखते हुए मुस्तफ़ा को सटपटाने पर मजबूर कर गई। वो जो पानी पी रहा था उसे जबरदस्त उच्छू लगा। क्या मतलब? सीगम कुछ गड़बड़ महसूस करता बराह रास्त मुस्तफ़ा से पूछने लगा। सबकी नजरें खुद पर महसूस करते वो अपनी जगह पर शर्मिंदा हो गया। खूनख्वार निगाह पर डाली जो तीली लगाकर मजे से खाना खा रही थी, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब था कि ठूंस रहे थे। कुछ नहीं बाबा, वो बस एक केस में अहम सुराग मिला है। आज कॉल पर बताया था इसे, इसी बारे में बात कर रही है। गला खंगारते सीगम को मुतमईन करने की नाकाम सी कोशिश की। साथ ही दांत पीसते उसे घूरा। जी मामू, बहुत बड़ा सुराग मिला है, नीला नीला सा। मुस्कुराहट छुपाने के गर्ज से पानी का गिलास मुंह को लगाया। सबकी नजरें एक बार फिर घूमकर इसी पर आन ठहरी। वो तो भला हो फोन का जो ऐन मौके पर बज उठा। सीगम एक्सक्यूज करता बाहर निकल गया। भाई, कहीं आप इस सुराख की बात तो नहीं करी जो थोड़ी देर पहले ब्राउन कागज में आपने अपनी वार्डरोब के आखिरी दराज में रखा? मुस्तफा आंखें फाड़ कर अपनी बाईं जानिब देखने लगा, जहां वो टांगे झुलाती मुस्कुरा रही थी, बालों की लट उंगली के गिर्द लपेटते अपने मखसूस अंदाज में आंखें घुमा रही थी। साफ इशारा था कि डील करनी है तो जल्दी की जाए, वरना बाद में ऑफर कैंसिल हो जाएगी। आपका फोन चाहिए मुझे? मुस्तफा का हाँ में इशारा पाते जल्दी से बोली। मुस्तफा ने दुख से टेबल पर पड़े अपने नए आईफोन को देखा, जो चंद दिन पहले ही खरीदा था। ऐसा फोन इसके दोस्तों में से किसी के पास ना था। उसे याद था कि कैसे सब दोस्तों ने इस फोन के खातिर पापड़ बेले, क्योंकि ये फोन जहाँ अच्छा खासा महंगा था, वहीं पाकिस्तान में इसका स्टॉक भी लिमिटेड था। प्रिंसेस, कोई और शर्त रख लो, बेबसी से फोन को देखते कहा। मिनहा एक अदा से नफी में सर हिला गई। हाँ तो तुमसे कुछ पूछा था, सिकम आते ही बोला। मुस्तफा ने गला खंखारा। ये क्या बाबा, आप ये सारी बातें स्टडी में करना। अभी यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी, वरना मैं नाराज हूँ। बिराल ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सीकम सरेंडर करने के से अंदाज में हाथ उठाता खाने पर झुक गया। अलाया ने खा जाने वाले अंदाज में भाई की भूखी और लालची चमची को देखा, जो अच्छे खासे मौके पर रंग में ढंग भंग डाल चुकी थी। मुस्तफ़ा ने एक चिढ़ाने वाली नज़र अलाया पर डाली तो वो दूसरी दुखी और अलविदाई नज़र अपने फ़ोन पर, जिसे अब मिनहा खिसका कर अपनी तरफ कर चुकी थी, जैसे बावर कराना चाहो कि अब इसकी मलकियत है। किसी का एक जुमला इतना महंगा भी हो सकता है, इस पे मुस्तफ़ा सीगम कमाल को अंदाज़ा नहीं था। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जो अलाया फातिमा में नहीं होती। इसका जुमला बीच में ही उचकते मुकम्मल किया, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। तो मिरहा के फ़ोन करके कहने पर मुस्तफ़ा उसे छोड़ने जा रहा था। वो तो इस लड़की पर पहले ही भड़का पड़ा था, इसलिए इनकार करना चाहता था, लेकिन ये सोचकर हामी भर गया कि मिरहा से मिल लेगा। अब गाड़ी में बैठते ही उसे शर्म दिलानी चाहिए, लेकिन मकाबल ने बावर करवा दिया कि शर्म हया नामी चीज़ का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सुनो, आइसक्रीम खिला दो, बहुत दिल कर रहा है मेरा। थोड़ी ही देर बाद इसके तपे चेहरे को देखते बचकाना लहजा अपनाया।
जहर ना खिला दूं, छिड़कर जवाब दिया और मुंह फेर लिया। इस लड़की के मुंह हरगिज नहीं लगना चाहता था। हाँ, पर साथ आइसक्रीम भी। जहर कड़वा होगा ना। फोन से नजरें हटाकर बिना बुरा मुंह बनाए जवाब दिया। इस वक्त आंखें पटपटाते वो उसे सख्त जहर लगी। ये सोच सोच कर हलकान हो रहा था कि सीगम को कैसे मुतमईन करेगा। इसका बाप सहाफी था और भला सहाफियों से बेहतर बाल की खाल कौन उतार सकता है। अच्छा नहीं किया तुम नालायक की बच्ची। मैं भी बताऊंगा कि आजकल तुम क्या करती फिर रही हो। एक दूसरे को धमकी देते इसी लम्हे वही 5 और 4 साल बच्चे लगे। न रूठे लहजे पर अलाया ने फोन बंद करके इसकी तरफ रुख मोड़ा। क्या बताओगे? दोनों टांगे सीट पर फोल्ड करके रखते हुए यूं बैठी जैसे सोफे पर बैठी हो। अपनी जान से अजीज नई गाड़ी की इस कदर बेकदरी पर मुस्तफा जब्त करके रह गया। आज का दिन ही बुरा था इसके लिए। पहले फोन की कुर्बानी, अब गाड़ी की तबाही। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या करती फिर रही हो? तुम फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए जो लोगों से राब्ते बना रही हो, मैंने मामू को बता देना है। अपनी तरफ से उसे धमकाने की कोशिश की थी। अलाया होंठ सुकेल कर उसे देखने लगी। फोन डैशबोर्ड से उठाकर कुछ ढूंढने लगी। कोई वॉइस नोट निकाल कर उसे सुनाया जहां वो आलियान के साथ किसी नामवर फिल्म प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रही थी। मुस्तफा मुंह खोले उसे देखने लगा। जवाबन इसने कंधे उचकाए जैसे कहा आप क्या करोगे, भाड़ में जाओ तुम। इसका फोन पकड़कर बंद करके पिछले सीट पर उछाला। तुम्हारे साथ तुम्हारी ही गाड़ी पर चलूंगी। हंसते हुए उसे फिर से धमकिया। मुस्तफा एक कारदार निगाह पर डालता सामने देखने लगा। चंद मिनटों का यह फासला लंबा लगने लगा था। दोबारा ना उसे मुखातिब किया था ना इसकी किसी बात का जवाब दिया। अलाया उसे तंग करने के गर्ज से ऊंची आवाज में म्यूजिक ऑन कर गई और मुस्तफा सवाए सबके कुछ भी ना कर सका। अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल होते पूरी कुव्वत से हलक फाड़ कर इसने सलाम किया। अफंदी हाउस के दरो दीवार हिल गए। साथ खड़े मुस्तफा ने भी साख्ता कानों पर हाथ रखे। कोई इंसानों वाला काम किया है तुमने कभी? दांत पीसते उसे कहा। अलाय ने निचला होंठ बाहर निकाल कर नफी में सर हिलाया। इस कदर मासूमियत पर मुस्तफा का दिल चाहा इसका सर फाड़ दे। कैसी है मॉम? मिरहा को आता देखकर आंखें बढ़ी, जबकि मिरहा मुस्तफा को देखकर इसकी तरफ बढ़ी। अलाया हवन्नकों की तरह खड़ी रह गई। इस सारे वाक़े में पहली दफा मुस्तफा के दिल को करार आया था। आंख दबाते उसे चिढ़ाया और वो चिढ़ भी गई। मॉम, मैं भी एक हफ्ते बाद आई हूँ। जरा एक नजर मुझ पर भी डाल ले। सामने चलता प्यार मोहब्बत उसे कतई बर्दाश्त नहीं हुआ था। फिर आगे बढ़कर इसके माथे पर बोसा देने लगी। माथे पर चढ़ी देवरियां मातूम हुई। होठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट फैल गई। चश्माटू कहाँ है? मुस्तफा अंदर बढ़ चुका था। वो इधर इर्द गिर्द देखती उसे ढूंढने लगी। इसका नाम काफी खूबसूरत है, इसी नाम से पुकारा करो स्वीटी। मोहब्बत भरे लहजे में तनबीह की। वो फर्माबरदारी से सर हिला गई, लेकिन अगले ही लम्हे उसे देखते चश्माटू का नारा लगाते इसकी तरफ दौड़ी। इस अचानक अफताब पर मेरा दिल थाम कर रह गई। अलाया को खुद पर झपटते देखकर नौफिल के हाथ में पकड़ा कैनूस और दीगर सामान जमीन बोस हुआ। मौमी से रोके सामान पर 2 हुर्फ भेजते वो भागा। जानता था कि वो इस वक्त जिस तरह का प्यार करेगी, वो 2 दिन तक किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। चश्माटू रुक जाओ वरना बहुत पिटोगे। इसकी तरफ भागते हुए धमकी दी। मेरा हाथ दांत पीसती फोन पर आलियान को वीडियो कॉल मिलाने लगी ताकि इसके बच्चों के करतूत उसे दिखा सके। हमेशा की तरह पहली बेल पर ही इसकी कॉल उठा ली गई थी। सामने का मंजर देखते वो मीटिंग अधूरी छोड़ता अपने केबिन की जानी पड़ गया और पुरसुकून सा सोफे पर बैठकर जिंदगी से भरपूर मंजर देखने लगा। सामने मुस्तफा को बैठे देखकर ठटका, जो दोनों को खूनख्वार निगाहों से घूरता संजीदा बैठा था। आलियान भी साख्ता मुस्कुरा दिया। सॉरी बाजी, वो मिनमिनाया। मुस्तफा का कह कहा गूंजा। अलाया रुककर दोनों की तरफ देखने लगी। यानी ये मिली भगत थी। पास पड़ा कुशन उठाकर पूरी कुव्वत से मुस्तफा पर फेंका, जिसे वो फुर्ती से कैच कर गया। मैंने एंजॉयमेंट के लिए कॉल नहीं की, समझा ही नहीं यार। मेरा खफकी से कहती वीडियो कॉल की जगह वॉइस कॉल मिलाने लगी। इतना अच्छा सीन है पर मैंने मिस कर दी। वो वाकई उन्हें बुरी तरह मिस कर रहा था। इसी ढील का नतीजा है। दूसरी जानिब से नरूठे लहजे में इसकी आवाज उभरी। हाँ ना, तभी तुम बिगड़ गई हो। मिरहा ने फोन कान से हटाकर दांत पीसे। हर बात का उल्टा जवाब हाजिर था। अगर आप नहीं चाहते कि आप 2 दिन स्टडी में गुजारें तो जल्दी से वापस आकर अपने बच्चों को समझाएं। तो मुझे मिस कर रही हो? वो सांस रोक गई। ये जवाब भी उल्टा था, मगर इसकी धड़कनें रोक गया था। कोई शक? जल्दी से कहकर कॉल काट दी। आलिया ने आंखें मूंद कर खिल खुलकर मुस्कुराया और जल्दी से मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। इरादा सारे काम निपटा कर जल्दी से घर जाने का था। चश्माटो तुम बचकर दिखाना। अलाय ने मुंह पर हाथ फेरते धमकी दी। नौफिल ने मदद तलब निगाहों से मुस्तफा को देखा। वो नो लिफ्ट का बोर्ड मुंह पर लगाता इलायची चबाने लगा। हुआ क्या है? मिरहा मुस्तफा के साथ बैठकर पूछने लगी। लाउंज के एक कोने में नौफिल खड़ा था, जबकि इससे चंद कदम के फासले पर अलाया उसे पकड़ने के लिए खड़ी थी। मामा, मेरी तस्वीर पर इसने बुरे बुरे कमेंट्स किए हैं, फेक आईडी से, और घटिया मैसेजेस कर रहा था। वो तो मैंने अपनी दोस्त की बहन से पता लगवाया था, उसका नंबर निकला। नई सिम से अपनी ही बहन को छेड़ रहा था, प्रपोज कर रहा था। इसको गुस्से से देखते मिरहा को बताया। नौफिल इसके अंदाज गुफ्तगू पर जोरदार कहकहा लगा गया, लेकिन मिरहा की घूरी पर जल्दी से होठों पर उंगली रखी।
अगले लम्हे मिसेस जवार अफंदी को देखते दांतों साईं बचाए कहता इनके पीछे छुप गया। अलाया पैर पटक कर रह गई। अब आखिरी उम्मीद आलियाना फंदी था जो न जाने कब आता। मुस्तफ़ा और अलाया आगे बढ़कर फायजा फंदी से मिलने लगे, जबकि नौफिल जान बचने पर शुक्र अदा करता फायजा फंदी के साथ साथ चल रहा था जैसे न जाने कितनी मजबूत ढाल हो। चश्माटू 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 अपनी भड़ास निकालती वो अपने कमरे की जाने पड़ गई। मम आप देख रही हैं इसे, रूहान से लहजे में मिरहा को बीच में घसीटता जो मुस्तफ़ा से बातों में मगन थी। नहीं बेटा मैं अंधी हूँ, और इतना ही बुरा लगता है ये लफ्ज़ तो मत पहना करो ये चश्मे। पता नहीं कौन सा शौक है तुम्हें, हर किसी को लगता है कि नज़र कमज़ोर है, पर हम उन्हें क्या बताएं कि हमारी निकम्मी औलाद को चश्मों का जुनून है। लफ्ज़ निकम्मी औलाद पर 22 साला नौफिल ने कॉलर पर से नादीदा गिर झाड़ी। बिरहा ने तासुब से उसे देखा जो बिलाशुबा नाजुक से नज़र के चश्मों में बेहद वजीह लग रहा था। 10वीं जमात में न जाने कौन से फिल्म के हीरो को देखकर चश्मों का जुनून चढ़ा था कि इस वक्त आलियान से जिद करके ढेरों मसनूई नज़र के चश्मे बनवा रही। वो दिन और आज का दिन नौफिल आलियाना पंथी के पास चश्मों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। जहाँ भी जाता अपने लिए चश्मे खरीदता, मगर अपने चश्मे किसी को देने का रवादार न था। मॉम लड़कियां मरती हैं मेरी लुक और पर्सनालिटी पर। दादी की गोद में सर रख कर लेटता वो सरशार सा बोला, इससे पहले तुम मरो मेरे हाथों से, जल्दी से ये सब समेटो। उसे लेटा देखकर मुस्तफ़ा नीचे पड़े गंद कैनूस कागज और पेंटिंग के सामान की तरफ इशारा करने लगा। वो मुंह बसोरता उठ खड़ा हुआ, साथ साथ खुद पर बीते जाने वाले मजालिम की दुहाइयां देने लगा। इसकी छोड़ी जगह पर मुस्तफ़ा फायजा फंदी की गोद में लेट गया। नौफिल इसकी चालाकी पर अश अश कर उठा। नानो कहाँ है? सायरा आजम का पूछा। वो सो गई है। फायजा फंदी इसके बालों में हाथ फेरती इससे बातें करने लगी। बेरहा मुस्कुराते हुए इसके लिए कॉफी बनाने चली गई। वो संजीदा सी लैपटॉप के आगे बैठी थी, उंगलियां तेजी से चलती न जाने क्या तलाश कर रही थी। माथे पर शिकनों का जाल बिछा था। कमरे में नीम अंधेरा था। कई कोशिशों के बाद भी कामयाबी न हुई तो थक कर लैपटॉप के लेट गिरा थी। अगले लम्हे दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल होता सारे स्विच गिरा गया। कमरे में एकदम तेज रोशनी फैली। अलाया ने बिसाख्ता आंखों पर हाथ रखे। चश्माटू निकल जाओ उससे पहले तुम्हारा सर फोड़ दूं। वो जानती थी इस वक्त इसके कमरे में सिर्फ वही हो सकता है। क्या है यार, आजकल के बच्चे मजाक भी नहीं समझते। सिर्फ तुम्हें तंग नहीं किया बल्कि मुस्तफ़ा की चमची को भी किया है। ये अलग बात है कि वो मिशन अभी भी पूरी कामयाबी से चल रहा है। अलाया दांत पीसती उसे देखने लगी जो मुंह चलाता बबल खा रहा था, जैसे भैंस जुगाली करती है। अगर इस भाई की चमची ने मुस्तफ़ा को बता दिया ना तो थाने ले जाकर तुम्हारी छितरौल करेगा। उसे डराना चाहता ख्यालों में मंजर निगारी करके नौफल ने झुरझुरी से ली। छोड़ो यार, तब की तब देखी जाएगी। नब लो, बोम बोम बबल खाओ। बूम बूम मचाते धूम। इसके बेड पर धप से गिरते बबल थी जिसे अलाया झपटते हुए मुंह में डाल गई। क्या कर रही थी? लैपटॉप देखकर पूछा। तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रही थी कोई एतराज? चलकर कहते लैपटॉप साइड टेबल पर रखा। मैं खुद ढूंढ लूंगा, वैसे भी जब इर्द गिर्द इतने अच्छे रिश्ते मौजूद हैं तो क्या जरूरत है बाहर ढूंढने की। इसका इशारा समझते अलाया ने मुंह बनाया। बेटा जरा शोखे ना हो, मामू तुझ जैसे चश्माटू को अपनी इकलौती बेटी कभी नहीं देंगे। तुम्हारे पास 2 गज लंबी जबान के अलावा है ही क्या? ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश फेरते उसे चिढ़ाया। कसम से मेरी सौतन लग रही हो इस वक्त, और किस चीज की कमी है मुझ में? वो भी उठकर इसके पीछे आया और शीशे के सामने खड़े होकर अपना जायजा लेने लगा। वो ठीक ही तो कह रहा था। वो एक वजीह मर्द था, शानदार पर्सनालिटी का हामिल, किसी की भी धड़कनें रोक सकता था। कमी नहीं है बेटा, ज्यादती है इस चश्मे की। इसकी आंखों से चश्मा उतार कर दूर उछाला। नौफिल भागकर अपना चश्मा देखने लगा, जो शुक्र था कि बच गया। इसको साफ करके वापस आंखों पर लगाया तो अटकी सांसें बहाल हुई। यार ये वाला मजाक ना किया करो। अपने चश्मे मुझे मेरे बच्चों से ज्यादा अजीज है। अपने बाल ठीक करते खुद को शीशे में देखा। हैं? कौन से बच्चे? किसके बच्चे? कहाँ के बच्चे? तेजी से इसकी तरफ पलट कर सवालों की बौछार कर डाली। मेरी भोली बहन, फ्यूचर के बच्चे। शादी होनी है, बच्चे होने हैं, फिर इनकी शादी होनी है, फिर इनके बच्चे होने हैं। इन सबसे ज्यादा अजीज है मुझे अपने महंगे महंगे चश्मे। खड़े खड़े लंबी प्लानिंग कर डाली। अलायस की बकवास पर उसे कमरे से बाहर निकालने लगी। निकलो यहाँ से, बताती हूँ मैं डैड को कि इनका अकलौता चश्मो चिराग दादा बनने के ख्वाब देख रहा है। जी नहीं, फिलहाल मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मैरिड लिखने के ख्वाब देख रहा हूँ। कमाल ढटाई से कहते आंख दबाई। अगले लम्हे अलाया ने धाड़ से इसके मुंह पर दरवाजा बंद किया। वो उछल कर पीछे हुआ, अपना चश्मा हाथों में घुमाते होठों पर किसी इंग्लिश सॉन्ग की धुन बजाते वो अपने कमरे की जाने पड़ गया। मकसद अलाया से अपनी छोटी मोटी नाराजगी खत्म करना था, और वो इसमें कामयाब हो भी चुका था। इनकी नाराजगी का दौरानिया इतना ही होता था। वो अभी तक अलाया से बन जाता मार खाता था, फिर भी वो दोनों एक जान तो गालिब थे। कहीं जा रही हो तुम? अलाया को तैयार देखकर मिरहा ने पूछा। जी, एक्सपो सेंटर जा रही हो? जूस का गिलास मुंह को लगाते बताया। कौन से वाले? अगला सवाल आया। हैदराबाद वाले।
इत्मीनान से जवाब देकर बकिया जूस खत्म करने लगी, वरना रिस्क की अहमियत पर एक लंबा लेक्चर सुनना पड़ता। मेरे साथ कराची जाना है तुम्हें, मुझे बता देना जब फारिग हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी, मिरहा आराम से कहती केक ओवन में रखने लगी। ओके मॉम। बकिया जूस का गिलास मिरहा के मुंह को लगाती वो फौरन से भागी थी। जब तक मिरहा को समझ आती इसकी गाड़ी गेट से बाहर निकल चुकी थी। वो उसकी चालाकी पर दाद देती बकिया जूस खत्म करके अंदर की जान पड़ गई। साथ ही मुलाजमा को केक का ध्यान रखने की तलकीन भी कर डाली। पिछले आधे एक घंटे से सामने चलता ड्रामा देखकर इसका मीटर शूट कर गया था। अपनी दोस्त के पुरजोर इसरार पर वो यहाँ आ तो गई थी, मगर यहाँ औरत मार्च और औरत की आज़ादी के नाम पर चलती तकारीर और मुबाहिसा का दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी था। शोबिज़, सियासत, खेल और बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले चंद बड़े नाम भी एक्सपो सेंटर हैदराबाद में जारी इस तकरीब में मौजूद थे। रोहा, मुझे भी वहाँ जाकर तकरीर करनी है, अपने साथ बैठी मशहूर बिजनेस टाइकून अकील अब्बास की बेटी रोहा अब्बास को कहा, जिसका बाप इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर था। वॉट, पागल हो? इसकी बात पर झटका ही तो लगा था उसे। बोल रही हूँ अपने बाबा को या नहीं? दाएं अब्रू उचकाए कहा, लहजा यूं था जैसे आर या पार। बोलती हूँ मुंह बसोरती वो उठ खड़ी हुई। अलाया अब सुकून से सामने होता ड्रामा एंजॉय करने लगी। जानती थी थोड़ी देर बाद अलाया का जादू चलेगा और इन सब का मीटर शूट करेगा। थोड़ी देर बाद उसे इजाजत मिली थी स्टेज पर जाने की। ब्लैक जीन्स के ऊपर कुर्ती और जैकेट पहने, बालों को पुश्त पर खुला छोड़ा हुआ था। सादे से होलिये में वो पुरकशिश लग रही थी। स्टेज पर पहुंचते हुए कई लोगों की तवज्जो का मरकज बनी। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अलाया फातिमा यहाँ चंद अल्फाज बोलने की इजाज़त चाहूँगी। वो पल भर के लिए रुकी और कलाम का मुनक़ता सिलसिला फिर से जुड़ा। शुक्रिया। काफ़ी बड़े नाम मौजूद हैं हर शोबे से, यानी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। मगर हैरत की बात है कि जिस मौजू का इंतखाब किया गया, मुझे लगा जैसे यहाँ बैठे लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं। रूहा सटपटाई। अलाया से कम ये उम्मीद नहीं थी। एक्सपो सेंटर में कायम खूबसूरत माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया। एक्सक्यूज़ मी। कोई तस्वीर नहीं। कोने में मौजूद चंद मैगजीन के नुमाइंदों को तस्वीर उतारता देख कर टोका। गार्ड्स इसकी बात पर हरकत में आते तस्वीर न बनाने की यकीन दहानी करवाने लगे। डिस्टर्बनेस के लिए माजरत ख्वाह हूँ। हाँ, तो इस मौजू का इंतखाब करना मेरे नज़दीक सरासर बेवकूफ़ी है। मुल्क की माशे डूब रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कर्ज में इजाफा हो रहा है तो क्या हुआ? हमारा मसला थोड़ी है। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, हम क्या करें? हमें तो मिल रहा है ना खाने को। बिजली का बिल, बिजली का मसला है, गैस का मसला है। हमारे घर तो सब आ रहे हैं, तो हम क्या करें? ये है यहाँ बैठी एलीट क्लास की सोच, और निहायत घटिया सोच है हमारी। मैं कोई भाषण देने नहीं आई यहाँ। पिछले एक घंटे से यहाँ औरत मार्च की पुरजोर हिमायत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। अरे एक मिनट रुके, पहले जरा एक नज़र औरत मार्च पर तो डालें। इसने रुककर अपने सामने पड़ा लैपटॉप, जो कि प्रोजेक्टर से मुंसलिक था, उसे चलाया। इंटरनेट से चंद तस्वीर जो कि बैनर की सूरत में औरत मार्च, आज़ादी मार्च पर कसरत से मौजूद थी, उन्हें निकाला। नाकाबिले बर्दाश्त तस्वीर जिनमें मौजूद बैनर्स और चार्ट जिन्हें इंसान अपने घर वालों के हमरा बैठकर नहीं देख सकता था, वो सामने दीवार पर चलने लगी। खामोश माहौल में चुगमियाँ शुरू हो गई। देखिए ज़रा, जिनकी आप हिमायत कर रहे हैं, सब उन्हें ये आज़ादी चाहिए। इस आज़ादी की हिमायत की खातिर आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर बहुत अच्छे से ज़ाया कर रहे हैं। आप खुद पढ़ लें ये बैनर्स, क्योंकि मैं इन्हें पढ़ नहीं सकती। लोग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग जानते थे कि वफाकी वजीर की बेटी है, इसलिए कोई उसे रोकने की जसारत न कर सका। और फिर वो पूरे 10 मिनट लगातार बोलती रही। किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत ना थी कि उसे रोकता। इस्लाम हलाए फातिमा के दिल ने गवाही दी थी कि कम अज़ कम पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैसा और बड़ा नाम बेतहाशा ज़रूरी है, वगरना यहाँ इंसान की औकात गली में पड़े कचरे से ज़्यादा की ना थी। अपनी बात मुकम्मल करते वो तालियों के शोर में बाहर निकल आई। रोहा ने उसे रोकना चाहा, मगर वो किसी के हुक्म की पाबंद थोड़ा थी। दिल में मुसम्मम इरादा किया था कि आइंदा कहीं भी जाने से पहले 100 बार सोचेगी। अगर उसे बोलने का मौका न दिया जाता तो यकीनन इसका मीटर अब तक बुरी तरह चोट कर चुका होता। सुने, अपने पीछे आवाज़ पर रुकी और बेसाख्ता पीछे देखा। जहाँ काले थ्री पीस सूट में मलबूस कोई नौजवान खड़ा उसे पुकार रहा था। वो जैकेट की जेबों में हाथ डालती रुक गई, जैसे कहना चाह रही हो कि तुम्हें काम है, खुद मेरे पास आओ। और वो उसका इशारा समझता तेज तेज कदम उठाता उस तक पहुंचा। काफी अच्छा बोलती हैं आप, कुछ देर पहले वाले वाक्य की तरफ इशारा किया था। वो बेसाख्ता मुस्कुराई। हक और सच की बात कोई भी बोले अच्छा ही लगता है। और वो दूसरी बार एक ही लड़की से बुरी तरह मुतासिर हुआ था, जो सामने हर चीज से बेनियाज खड़ी थी। पहले जब वो अंदर बोल रही थी सबके खिलाफ डंके की चोट पर, और दूसरी बार अब फिल्म करेंगी। वो फौरन मुद्दे पर आए। वो बादा मौका ना गवा बैठे। वो जानता था कि इस इंडस्ट्री में आना आजकल हर दूसरे शख्स का ख्वाब है। इस दुनिया का हिस्सा बनने का ख्वाब हर शख्स देखता है, और अगर ये मौका खुद चल कर आए तो कौन काफिर ठुकरा सकता है। सामने खड़ी लड़की बिलाशुबा खूबसूरत तरीन थी। इसका अंदाज, गुफ्तगू, तर्ज मुखातिब, सब कुछ मुकम्मल था। और एक प्रोड्यूसर को इससे बढ़कर मुकम्मल शाहकार कहाँ मिलेगा। उसे यकीन था कि इस लड़की पर मेहनत करने की कतई ज़रूरत नहीं थी।
ये तो बनी बनाई हीरोइन थी। अलाया पल भर के लिए ठटकी, आईब्रो चुकाकर उसे देखा। आपको किसने कहा कि मैं फिल्म करने की ख्वाहिशमंद हूँ? हाथ बांधते सीधा सवाल पूछा। शोहरत और पैसा किसे बुरा लगता है, और आपकी खुशकिस्मती कि मैं आपको बजात खुद ऑफर कर रहा हूँ। अपनी तरफ से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। वो मुतासिर अंदाज में सर हिला दी। बिरहा को जानते हो? वो जवाब भी अपनी ऑफर के बदले में इसके जवाब का मुंतजर था। इस अजीबोगरीब सवाल पर हैरान हुआ। न जाने क्यों सामने खड़ी लड़की की जहनी हालत पर शक हुआ। मिरहा आलियाना पंदी बिना सोचे यही नाम बोली, क्योंकि इसके अलावा कोई मिरहा नामी मशहूर मारूफ औरत को वो नहीं जानता था। नहीं, मिरहा कमाल। नफी में सर हिलाते इसकी तस्हीह की। दायां हाथ हवा के दोज से उड़ते बालों को पीछे उड़ेस रहा था। एक ही बात है, कंधे उचकाते उसे देखा। वो फिर मुस्कुराए थे, और बिलाशबा इसकी मुस्कुराहट जानलेवा थी। एक बात नहीं है, मिरहा कमाल एक नामवर सहाफी थी जिसे दुनिया जानती थी, जबकि मिरहा आलियाना पंदी का तारुफ सिर्फ इतना है कि वो एक वफाकी वजीर की अहलिया हैं और एक आम से समाजी कारकुन। अलाया ने पल भर में इसके खुशफहमी दूर करने करते तस्हीह की, और बिना पलक झपकाए इस लड़की को देखे गया जो उसकी आंखों में आंखें डाले बोल रही थी। उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद बुरी तरह इस पर फिदा हो गया था। हाँ, तो मैं बता रही थी कि वो माँ है मेरी, और वो कहती है कि जो नाम और शोहरत झोली में आकर गिरे उसे ठोकर मार दो, क्योंकि ऐसी शोहरत सवाए फरेब चश्म के और कुछ नहीं होती। बल्कि इनका मानना है कि नाम और शोहरत कमाने के लिए धक्के खाओ। जितने धक्के खाओगे, जितनी कोशिश करो, जितनी मेहनत करोगे, इतना ज्यादा कामयाब होगे। मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वो अपने मखसूस दिल फरेब लहजे में बोल रही थी, जबकि वह हनूस उसे देख ही जा रहा था। तो बात यह है कि अभी इस वक्त तक तो मेरा फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का कोई इरादा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मुझे फिल्म करनी होगी ना, तो मैं ऑडिशन दूंगी, लंबी कतारों का हिस्सा बनूंगी, सिलेक्शन का इंतजार करूंगी, रिजेक्शन का मजा चखूंगी, फिर ही तो असल मजा आएगा। क्या समझे? जुमला मुकम्मल करते इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर उसे होश की दुनिया में लाई। अपना काला चश्मा जैकेट से साफ करते आंखों पर चढ़ाया। शाम का ढलता मंजर और उस पर सामने खड़ी लड़की। इर्तिजा हदीद के दिल ने कुदरत के इस शाहकार को जी भर कर सराहा। ये लड़की, इसके अल्फाज उसे हिप्नोटाइज कर रहे थे। वो पूरी की पूरी सरापा हुस्न थी। और हाँ, एक और बात, अगर अलाया फातिमा तुम्हारे साथ कभी काम करे तो उसे तुम अपनी खुशकिस्मती समझना, क्योंकि मैं पहले से ही खासी खुशकिस्मत इंसान हूँ। लफ्ज तुम पर खासा जोर दिया गया था। एक मुस्कुराहट इसकी तरफ उछालती वो आहिस्ता से कदम उठाती वहां से मुड़ गई, जबकि वो अभी तक हक तक सा उसके हसार में खड़ा था। तूने? फिर से पुकारा था। वो रुक गई, अलबत्ता मुड़ी नहीं थी। दोनों अपनी अपनी जगह खड़े थे। इर्तिजा हदीद को तो इसने हिलने के काबिल छोड़ा ही नहीं था। वो अब तक इसके हसार में जकड़ा वहीं खड़ा था। आपका नाम क्या है? अलाय ने चश्मा उतार कर गर्दन टेढ़ी करके उसे देखा। उसे बगौर देखते वो खिलखिलाई। प्रोड्यूसर या डायरेक्टर साहब, इंसान को इतना भी मदहोश नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर पहले अपना नाम बता चुकी हूँ। मेरा नाम आपके लिए जानना जरूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, क्या याद करेंगे? अलाया नाम है मेरा। हंसते हुए कहते वापस मुड़ने लगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो फिर से रुकी थी, एक तायराना निगाह पर डालती आगे बढ़ गई। जैकेट उतार कर दाएं कंधे पर डाली हुई थी, जबकि चलते चलते वो अपनी पुश्त पर खुले बालों को पोनी में बांध रही थी। इर्तिजा हदीद की निगाहों ने हद निगाह तक इसका पीछा किया। अलाया, इसका नाम जेरे लब बड़बड़ाते हुए चेहरा खिल उठा। लाशौरी तौर पर इसने कई बार अलाया का नाम दोहराया। मुस्कुराते हुए सामने देखा जहां वो थोड़ी देर पहले खड़ी थी, और न चाहते हुए आहिस्ता से कदम उठाता वहां से अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई, और कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।